Good morning, everyone. Welcome to our new third series part on what colleges and schools should teach in our syllabus. In this series, we will talk about the real topics that matters to students and society. And today, we start with one of the most debatable issues: student elections. Should student elections like DUSU be a part of colleges and university life or not? Let's dive in. Delhi University, it's not about classroom exams; it become a battlefield of politics. Now you might think, why does the student elections get so much national attention? Let's look at the facts. This year, more than 2.75 lakh students were eligible to vote. Out of them, nearly 1.55 lakh students actually voted. That's a turnout of 39.45%, higher than many cities' civic polls in India. There were 21 candidates competing for just 4 seats: president, vice president, secretary, and joint secretary. Voting took place in 52 centers and 195 booths with electronic voting machines, just like Lok Sabha elections. Why it's so popular? क्यों इतना popular? हर जगह DUSU के election, हर जगह DUSU के. Because it's not just a college election, it's seen like a mini parliament of students. सच कहा, मिनी पार्लियामेंट है. काफ़ी कॉलेजेस को, छोटे कॉलेज को पता भी नहीं होगा क्या होता है ये. मैनी लीडर्स हु बिगिन हेयर लाइक अर्जुन जेटली, अजय मेकन, विजय गोयल went to become a national political figures now in current political parties now this. That's why big parties like the BJP, Congress and left groups fund and guide their student wings. AVP, AVP, NSUI, AISA, SFI, they used DU as a nursery for future politics. So what students gain? On the positive side, election gives students a voice. Campaigns raise issues like a hostel shortage, high fees, women safety, better libraries, clean washrooms, improved mess food, digital classroom, and sometimes even policy reforms. Just like everybody says, winning leaders can pressure the university to act, and they learn real-world skills: public speaking, organizing, negotiating, leadership. For many, this in the first taste of democracy. वो जो हर पॉलिटिक्स कहता है, क्या कहता है, हर पॉलिटिशियन कहता है कि मैं ये चीज़ें करूँगा, पर कोई नहीं करके देता. जिसने करना होता है वो, इनको प्रोपागेंडा वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं. जब इनके पास इतने पैसे हैं, व्हेन दे हैव लग्जरी कार्स, दे कैन कमिंग इन द मर्सिडीज, BMW स्पोर्ट्स कार दे हैव, तो इनको ये प्रोपागेंडा करने की ज़रूरत नहीं. क्योंकि जिसने चेंज लेके आना फील्ड के अंदर, वो अपने पैसे लगा के अपने आप को वहाँ पर जाके ठीक कर सकता है. उसको प्रोपागेंडा करने की क्या ज़रूरत है. बट क्या कहते हैं, आगे सुनते हैं. इलेक्शंस ऑल्सो ब्रिंग द वर्ल्ड हैबिट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इनटू कैंपस लाइफ. कोर्ट्स हैव ऑलरेडी वार्नड अबाउट द मिसयूज ऑफ मनी एंड मसल पावर. Every election season, roads outside DU filled with luxury SUVs, big rallies, blaring speakers, and massive posters. Some candidates spend lakh far beyond what students' elections are supposed to allow. The Delhi High Court recently said clearly, some time must be done to stop the use of money and muscle in DUSU elections. And they fight and they write. When the focus shifts from student issues to show-offs and the expensive rallies, democracy is weakened. वही बात हुई कि रील्स पे इतना वायरल हो रहा है, ट्रैक्टर पे रैलीज हो रही हैं, लग्जरी कार्स, जितने बच्चे क्या कहते घूम रहे हैं, इनको इसमें एग्ज़ाम्स की कोई प्रोपेगेंडा कुछ नहीं हो रहा है काम. सब माला पा के, क्या कहते हैं, टोपी लगा के, चिट्टा कुर्ता पा के, शर्ट पा के निकल पड़े यहाँ पे वोट मांगने के लिए. वही जो हमारे पॉलिटिक्स ऑलरेडी कर रहे हैं, पर हम इनको जेंजीज कहते हैं. वही 20-25 साल के बच्चों को जेंजीज कहते हैं. पर कुछ ना तो कुछ यहाँ लेके आ पाए, वही ओल्ड फैशन, ओल्ड लेगेसी उसी को चलाई जा रहे हैं. तो जेंजी कहने को जेंजी है, पर अगर काम करने में जेंजी वही ओल्ड फैशन को ही देख के करना चाहती है. तो आगे हम शुरू करते हैं फिर. न्यू रिफॉर्म्स पे टू फाइट विद DU इंट्रोड्यूस द 1 lakh श्योरिटी बॉन्ड रूल. द आइडिया स्टॉप कैंडिडेट्स फ्रॉम defacing walls and littering campus with posters. If court breaking rules, their bond is fortified. The university later clarified, no upfront money is required, only a guarantee from parents or friends. Still, many students argue that discourage poor candidates while richer ones easily manage. क्योंकि वही जो रिचर है उनके पास लग्जरी कार्स है, वो ये मार्केटिंग अपनी अच्छी करेंगे. वो ये ना, जो जब ज़्यादा मार्केटिंग करेगा वो ज़्यादा बिकेगा. तो वही है, जो अगर कोई पुअर कैंडिडेट क्या कहता है खड़ा होना चाहता है इलेक्शन, उनको ये पहले ही दबा देते हैं. अभी जस्ट ये 20-25 साल के बच्चे हैं, उसमें ही क्या कहते हैं इनके पास ये दिमाग खेलते हैं. अब वोट चोरी हुई, काफ़ी पीछे रील्स वायरल हो रही थी कि आर्यन मान के ऊपर ब्लू लिंक से क्या कहते हैं उसको कर दिया. तो ये ऐसी चीज़ें अभी से करने लग गए. तो आप सब सोच ही सकते हैं क्या आगे पॉलिटिक्स का क्या इनका बनेगा करियर. तो जो भी है आगे डिस्कस करते हैं हम.
Another reform under the national education policy, the third year students can now contest key posts, increasing competition and participation. On paper, this looks like progress. The bigger picture is, so what do we have here? On one side, DUSU elections empower students, give them leadership opportunities and bring real issues to the spotlight. On the other side, the mirror have the flaws of our national politics, corruption, money power, muscle power, low vote turnout and unnecessary drama. तो वो ये अगर बच्चा DU में से पढ़ रहा है तो वो ये एक्सपेक्ट करेगा मुझे प्लेसमेंट चाहिए, और अगर करियर बनाता पॉलिटिक्स के अंदर तो वो कोई रूलिंग पार्टी ज्वाइन कर लेता, कोई भी पार्टी ज्वाइन कर लेता उसमें, तो सीख के क्या कहते हैं बन जाता. पर आई थिंक डोंट नो क्या कहते हैं ये ड्रामा कब से चला और ये चीज़ें हैं. एंड टर्न आउट इट्स क्वेश्चन मार्क. वही, इफ़ ओनली 39% ऑफ स्टूडेंट आर वोटिंग डज नॉट दैट लोअर लैक ऑफ फेथ इन द सिस्टम. अगर हम DU में की बात कर रहे हैं, 100% बच्चे अगर कॉलेज में आ रहे हैं तो सिर्फ 39% बच्चों ने वोट दिए. इसका मतलब क्या है? 70% कहाँ गए? 60% सॉरी, कहाँ पे गए? वो कहीं पे भी मतलब उनको देना ही नहीं चाहते, क्योंकि कोई बनता ही नहीं इसका हिसाब क्या करते हैं. तो आगे कंक्लूजन पे आते हैं हम. सो वी आर लेफ्ट विद पैराडॉक्स. DUSU इलेक्शंस आर बोथ ऑफ प्लेटफॉर्म ऑफ होप एंड अ मिरर ऑफ आर ब्रोकन पॉलिटिक्स. They can train the next generation of leaders, but they can also poison young minds with the same old tricks, false promise, money, power, and showmanship. That brings us to the real question: are we preparing responsible leaders of tomorrow, or just cloning the bad habits of today politics? Like same I have said already, it's time we students and citizens think seriously. Should elections be about rights, reforms, and student welfare, or just another show of game? तो वो ये काफ़ी पीछे रील्स इंस्टाग्राम रील्स वायरल हुई थी. वही जो प्रेसिडेंट था पुराना, वो क्या कहता है उसका नाम, खत्री, तो उसने वही क्या कहते दादागिरी करता था काफ़ी ज़्यादा. टीचर्स के साथ उसको बिहेव करने की आदत नहीं थी. हर चीज़ वो क्या गुंडागर्दी से करना चाहता था. एक बात कहने का तरीका होता है, पर मैं उसको मुझे नहीं पता कौन है नहीं है, मैं उसके बारे में नहीं जानता. पर एक चीज़ है, बोलने का सेंस क्या कहते हैं, तमीज़ होनी चाहिए. अगर उसने पॉलिटिक्स में अगर अपना करियर बनाना भी है, दादागिरी मतलब तुम दूसरे को गिरा रहे हो. क्या कहता है, उसने भी अपनी लाइफ में कुछ ना, टीचर है तुम्हारी, क्या कहता है उसने भी कुछ काम करके सैलरी तुमसे कम है क्या बेट, फिर भी तुमसे कर रही है, रिस्पेक्ट से बात कर रही है. बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, किसी ने इसके ऊपर एक्शन लेना है, बस हुक्म चलाने हैं. अगर तुझे लग रहा है कि कोई चीज़ ख़राब है तो खुद ठीक कर दे. कहने से अच्छा खुद ठीक कर दो ना, फिर दिखाओ क्या भी मैंने ये ठीक करवाया. तब तो चलो हम कहते हैं कि मैं है तब कि मैंने ठीक करा दी. पर ना ठीक नहीं करानी, कहने हैं दूसरे को तुमने क्यों नहीं ठीक करवाई. अगर तुम्हारे पास लग्जरी कार, ये चीज़ें करने के पास पैसे हैं, तो तुम्हारे पास इस चीज़ के लिए भी पैसे हैं, तो करो फिर. क्या कहते हैं, और वैसे भी तुम्हें पॉलिटिक्स रूलिंग पार्टीज़ वगैरह पैसे दे ही रही है कैंपिंग करने के लिए, वो कैंपिंग में पैसे तुम इसमें लगाओ. वाई डू वो क्या कहते हैं, मार्केटिंग के लिए पैसे तुमने खर्चने हैं. तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो. थैंक यू सो मच.